Hello, class 10. So, this is chapter 7, coordinate geometry. So, you have already done the questions where we have to find the distance between the two given points or maybe four given points. And if it is a triangle, then yes, 3 points. अब यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे these are mainly based on the concept of equidistant. So basically we are given with 3 points and one of the point is equidistant from the other two. So we are going to discuss equidistant concept in today's class, and the most important point of this concept is we can do calculation is a more simpler way. Okay, what you do, you find distance PA, then you find distance PB, then you just compare these two, but we can do this thing in a single step, and that will save our time, our energy. And if the question is in simplified form, then yes, it is there are chances that it will be correct. And one more thing, with each and every question today I'm going to give you one question just similar to the question that I will solve. The reason for this question is that you can test your understanding. Like you can see one of the question, how I do for you, and then you can do the similar question by yourself to check if you are comfortable in the concept or whether you are applying the concept in your solution or not, so that you will be having a good hand in this format. Clear? So चलिए जी start करते हैं. It says find a relation between x and y such that the point pxy is equidistant from the points A and B. A के coordinate 7, 1, B के coordinate 5, 5. So in these types of questions, generally I recommend to draw the diagram like this. So P is this point having coordinate x and y, and A is this point coordinates 7, 1, and B is this point coordinates with 5, 5. ठीक है. अब हम लोगों को जो एक्चुअल में यूज करना है, जो शॉर्टकट में आपको बोल रही हूँ, जो इजियर सिंपलर स्टेप आपको बोल रही हूँ, इट सेज PA is equal to PB given. क्लियर है ना? हमें बोला गया था equidistant, and this diagram that we draw here, actually the point that you are going to take from your book or from your question paper, so you can just check the coordinate whether you have taken the right coordinates or not. So it will help in that way. Secondly, when I have to find the distance and I have to apply distance formula, I can use from here. So virtually these are in front of my eyes and I will actually put the correct value. Like chances are that we will not make any mistake while putting the values of the coordinates. So PA PB के अगर equal है, then yes, squaring both side, I can say PA square is equal to PB square. Clear? If two things are equal, then their squares will be equal. Now, like we have to use distance formula here, so it would be better if we write distance formula at least once. Okay, so distance formula is under the root x2, कोई भी distance हमारा हो सकता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब बच्चे जो होते हैं x1 x2 y1 y2 ना इन क्वेश्चंस में लिखने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपने ये डायग्राम बनाया होगा तो मान लीजिए मैंने पॉइंट बोला PA, तो P के कोऑर्डिनेट्स विल बिहेव एज x1 x2 एंड A के कोऑर्डिनेट्स विल बिहेव एज x2 y2. ठीक है ना? x1 y1 P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एंड x2 y2 A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. एंड व्हेन आई ऑपरेट PB, इन दैट केस B के जो कोऑर्डिनेट होंगे दोज विल बिहेव एज x2 y2. सो इट वुड बी मच इजियर टू थिंक एंड देन अप्लाई. चलिए जी, अब बिकॉज यहाँ पे मैंने PA स्क्वायर लिखा है, सो दिस रूट विल जस्ट वैनिश बिकॉज स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल ईच अदर. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द PA वैल्यू. सो PA के लिए मेरा देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, x minus 7. सो x minus 7 होल स्क्वायर, बीच में आपका प्लस का साइन होता है, देन y minus 1 का होल स्क्वायर, y minus 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे इफ यू वांट a के कोऑर्डिनेट्स को हम पहले भी लिख सकते हैं. I could have written 7 minus x whole square plus 1 minus y whole square, but it will not make any difference because a minus b whole square is equal to b minus a whole square. Clear? So अब मैंने रूट नहीं लगाया, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि स्क्वायर था. स्क्वायर का मतलब रूट और स्क्वायर
आपस में एकोमोडेट कर जाएंगे। देन पी बी के लिए हम लिखेंगे x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब बाय चांस हमारा all the four brackets are using the identity a minus b whole square, so let's write it here as well, a square minus 2ab plus b square. Okay, so I can just apply the identity 2 in all the four terms, so it will be a square x square minus 2ab, 2 into 7 14x plus b square मतलब 7 का square 49. So if you want, if you are planning to write 7 and then whole square, then you can just write 7 square 49. Okay, so y square minus 1 into 2 into y, so 2y plus 1 का square 1 होता है. Then on the right side it is x square plus minus 5 to the 10x plus 5 5 is 25 plus y square minus 5 to the 10y plus 25. So अगर हम चाहते हैं हमारा लेफ्ट और राइट वर्क जो हम लोग फॉर्मूलाज वाला कर रहे हैं वो मेस ना हो, तो जस्ट पुट अ लाइन हियर. अब यहाँ पे जो आपकी लाइक टर्म्स होती हैं ऑन ऑपोजिट साइड विल कैंसिल ईच अदर, सो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद वाई स्क्वायर. ओके, नाउ इट इज minus 14x and minus 10x, so I will just shift variables on one side and constants on other side, and I do the calculation at the same time. So minus 10x, when it will come here, minus 14x plus 10x, देन माइनस 2y एंड यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 10y. इट इज इक्वल टू 25 प्लस 25, इट इज गोइंग टू बी 50 एंड 49 प्लस 150 एंड 50 will get shifted on the right side and it will become minus 50. oh my god, 50 ने 50 को कैंसिल कर दिया. अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, minus 4x plus 8y is equal to 0, and I can take minus 4 or minus 4 common and I can shift the term as well. So it will become minus 4x is equal to minus 8y, and then negative se negative cancel, 4 will get on the right side and it will get divided. So 8 by 4 2. So x is equal to 2y is my relation. X is equal to 2y is my relation. Now just have a look. कोई कटिंग नहीं हुई है. वी हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी यूज इन दिस क्वेश्चन. प्रॉपरली हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को, एंड देन फाइनल आंसर विद इन द ब्लॉक, एंड यू आर गोइंग टू गेट full marks. Clear? Now this question here, test your understanding, is find a relation between x and y such that point pxy is equidistant from the points a 3,6 and b minus 3 and 5. सो लेट्स सी आप में से कौन कौन बच्चा बिल्कुल अच्छे वाला सोल्यूशन हमें शेयर करता है, एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर देन यू विल गेट द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर पिटारा. So it says find the point on y-axis which is equidistant from the points A and B. So look, both the question are just same that we did in the previous page. It says the point is on y-axis, while in the previous question it was the point PXY. What the difference? Now P जो point है ये बोल रहा है as point P lie on y-axis. ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लेवरली सोचना होगा. पॉइंट P lies on y-axis का मतलब है इफ एनी पॉइंट, ये मैंने एक्सिस बनाया, सो अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे देखिए y-axis पर लाई करता है, सो इट विल हैव द कोऑर्डिनेट, देयर विल बी 0 फॉर द एब्सिसा एंड y. ठीक है, so 0 comma y will be the points. So as point P lie on y-axis, therefore पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं 0 y. क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोगों का जो डायग्राम वाला पार्ट होता था, जनरली मैं तो हर क्वेश्चन में बनाऊंगी, इट्स योर चॉइस, दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट यस इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी अलोंग विद करेक्ट आंसर. क्लियर? So P 0 comma y because the point was on the y axis, and A के coordinate 6 5, B के coordinate minus 4 comma 3. Just the same concept that we did in the last question. So it says PA is equal to PB, and if two distances are equal, then their squares will also be same. PA square is equal to PB square. Now, as we are going to use distance formula, so I would recommend write distance formula. मैं distance formula थोड़ा सा टीचर होने का ना
बेनिफिट ले रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ हर बार, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला. Okay, and if whatever identity we are going to use, then we have to write that identity as well. So I will repeat distance formula at least twice in the same question. So PA, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So देखिए यहाँ पे ये वाली जो P के कोऑर्डिनेट्स है इनको हम x1 y1 एज्यूम करते हैं, जो A के कोऑर्डिनेट्स है इनको हम x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं. So PA, A के लिए मेरा देखिए 6 minus 0 whole square plus 5 माइनस वाई होल स्क्वायर. सो ये मेरा बन गया लेफ्ट साइड. अब मेरा स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से ऑलरेडी एकोमोडेट कर गया है, तो हम लोग रूट को नहीं दिखा रहे हैं. What is PP? PP के लिए देखो x1 y1 क्लियर एंड x2 y2. सो यहाँ से मेरा आ जाएगा -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर. सो देखिए बच्चा ये हो जाएगा 6 माइनस 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है. कभी कभी बच्चे इसमें ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग जीरो को ना a माइनस b की आइडेंटिटी में भी कभी कभी देखा है मैंने, तो प्लीज अवॉइड दैट. दैट इज बिल्कुल बिल्कुल गंदा स्टेप है, ठीक है. सो दिस इज 5 स्क्वायर 25, फिर आपका a स्क्वायर माइनस 5 टू 10 y प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट में मेरा -4 माइनस 0 -4 है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 है. अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर है इट विल बिकम प्लस. सो 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 2 6 वाई. सो आई हैव यहाँ पे जो आपका -0 -4 होल स्क्वायर है इट इज एक्चुअली प्लस स्क्वायर है, क्लियर. अब यहाँ पे मैंने इधर तो लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो इट्स कंप्लीटली फाइन मेरा बच्चा, बिकॉज प्लस माइनस यहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स को आगे और पीछे अरेंज कर दिया और हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. अब यहाँ पे हमारा जो जो टर्म कैंसिल हो सकता है, वी वुड लाइक टू कैंसिल दोस टर्म. सो वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को कैंसिल किया. अब देखो वैसे तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 25 और यहाँ पे 16 प्लस 9 25. तो वैसे तो मैं तो 25 को यहाँ पे 16 प्लस 9 से डायरेक्ट काट देती, सच बता रही हूँ. बट अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है तो आप इसको क्या मतलब लाइक नेक्स्ट स्टेप में भी ले जा सकते हो. तो प्लस ऐड मत करना यार, ऐड करने में तो बिल्कुल ही गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा. सो 16 प्लस 9 25, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है ना, तो मैं पहले 36 में 25 को ऐड करूंगी फिर सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी. इज देयर एनी लॉजिक? नो, नॉट एट ऑल. सो जस्ट शिफ्ट like terms like constant on one side and variables on other. 25 yes, cancel. यार अच्छा है ना, जितना कम 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 काम मिलेगा करने को. तो 4y is equal to 36 and we can say y is equal to 4 9s are 36. अब बच्चे क्या कहते हैं 9 आ गया, मोना मैम ने बोला था ब्लॉक बना दो आंसर. नहीं जी नहीं, मैंने बोला था जो आंसर निकालना होता है उसको ब्लॉक बनाना होता है, और मेरे को क्या फाइंड करना है? पॉइंट. तो मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आंसर निकालने हैं. So the coordinates of point P, coordinates of point P are x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9. So 0, 9 is the answer of this question. So I hope it was a easier question. Clear? अब देखो बिल्कुल सिमिलर आपको दिया है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 2. Find a point on y-axis which is equidistant from the points A 5, 5, B minus 3, 3. So you can just solve this question and you can find the answer in the description box. Let's move on to the pitara. Yes, we are having one more question. Let's read it. It says, find a point on x-axis which is equidistant from the points A 2, minus 5 and B minus 3, 9. Is there any difference between this question and the previous one? मुझे तो नहीं लग रहा. Oh my god. So you got it. So it says the point is on x-axis, while in the previous question the point was on y-axis. So it is a bit of difference है ना, छोटा सा difference है. अब ध्यान से देखिए, अगर कोई point x-axis पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाते हैं. देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे. So this point will always have its y coordinate 0 and there will be some coordinate, some value for the x. So if a point lies on x-axis, it is x, 0 format. So let coordinate of P are x, 0 as it lies on x-axis. ठीक. अब as usual I am going to make this diagram
so that it would be much easier to put the values. So I will write P k coordinate x0, A k coordinate 2 minus 5, and B k coordinate minus 2 comma 9. Now the similar, like we are given that PA is equal to PB, or I can also say PA square is equal to PB square. ठीक, अब आई एम गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. यस, टीचर होने का फायदा. मैं नहीं लिखूंगी प्लीज यार, मैं बोल दूंगी, ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप नहीं लिखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कट जाएंगे बस आपके. तो देखो, x1 x y1 x2 y2, तो मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, सो यू कैन राइट इट ना. मैं टाइम तो लगा ही रही हूँ ना. सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो लेट्स राइट इट. x माइनस 2 होल स्क्वायर. ओ माय गॉड, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखना ही भूल गई ना. फिर आप बोलोगे आपने तो बोला ही नहीं था. मैंने बोला था भाई. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू. अब देखिए x माइनस ऑफ माइनस 2, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ पे ये वाला जो चीज है इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे भी लिखकर दिखा देती हूँ. तो x माइनस ऑफ माइनस 2, तो मैंने इन दोनों स्टेप को इकट्ठा क्लब करके ऐसे लिख दिया. तो इट इज कम्प्लीटली फाइन, चलेगा चलेगा चलेगा. अब आप बड़े हो गए हो एंड एक्चुअली यू हैव टू सेव टाइम. 80 मार्क्स का पेपर है, कैसे पेपर खत्म करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर. So as we are going to use the identity a plus b whole square and a minus b whole square, so it's better to write the identity. इससे आपको दो फायदे होते हैं. कभी कभी ना आप लोग फ्लो में जब काम कर रहे होते हो आप ये भूल ही जाते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. राघव, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है. तो ये जो 2ab और माइनस 2ab वाली टर्म है ना, आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो चलिए जी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x 2ab, है ना, प्लस 0 प्लस 5 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है. यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4 x हो जाएगा, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है जी. माइनस 9 था तो फिर लेकिन स्क्वायर में तो प्लस हो गया. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, लाइक टर्म्स को तो कर दीजिए आप कैंसिल. एक्स स्क्वायर को खत्म कर देना है. अब बच्चे बोल रहे मैम माइनस 4x प्लस 4x काटो काटो. अरे भाई, these are on opposite sides and opposite signs, so they will not cancel each other, they will add. ठीक है ना, क्योंकि माइनस 4x को जब मैं मूव करूंगी तो इट विल बिकम प्लस 4x. एंड हियर 25 और 24 को ऐड करके तो मेरा बन रहा है 29, और 4 और 81 ऐड करके 85, बट इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड. सो प्लस 85 will become minus 85. अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो 6 देन 5 एंड देन नेगेटिव साइन. ठीक है ना, माइनस 56. और यहाँ पे 4 प्लस 4 तो आपका 80 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7. बट दिस इज नॉट द आंसर. अब इसको ब्लॉक करके अगर आप आगे मूव कर जाओगे फिर आपका आधा एक नंबर कट जाएगा, तो मोना मैम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्चुअली. सो x की वैल्यू माइनस 7 को हम कैसे, अब फाइनल आंसर कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की तरह. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए p, मैंने p एज्यूम किया था ना अपने पॉइंट को. कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x, 0 है बेटा जी, तो माइनस 7, 0. सो दिस इज द आंसर दैट टीचर इज लुकिंग फॉर. चलिए अब आप मुझे जल्दी से बताइए आपको फुल मार्क्स क्यों मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन में. यस, आपका आंसर ठीक है, दैट इज द फर्स्ट की यार. हाँ, आई नो दैट. देखो, आपने फुल प्रेजेंटेशन की है, आपने फुल फॉर्मूलाज लिखे हैं, कोई कटिंग नहीं हुई है, प्रॉपर एप्लीकेशन की है आंसर राइट के साथ. सो यस, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. अगेन here is test your understanding question 3. Find a point on x-axis which is equidistant from points a 1 minus 5 b minus 3 and 7. तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन का रेप्लिका है. So if you want to solve this to check if you got the concept, what we are actually going to uh, tell you, what we want you to understand. So अब उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और आंसर आपको कहाँ मिलेगा, यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पिटारे में. तो ये हमें बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p माइनस 5, एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं a, p माइनस 5, और इसको हम लिख देते हैं b 2,7 इज 13 यूनिट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अब ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें p का वैल्यू फाइंड करना है.
क्लियर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है ए और यहाँ पे मुझे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी। ए बी हो गया। अब ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास p -5 और बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2 और 7। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज 13 यूनिट्स। क्लियर। देखो डायग्राम बनाते ही आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को जो गिवन है ये दे रहा है ए बी इज इक्वल टू 30। अब जब हमारा ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि यार मैं टीचर हूं ना। अच्छा चलो ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, आप भी लिखो मैं भी लिखती हूँ, देखते हैं कौन पहले लिखेगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे मैं जो करूंगी ना ए बी, अब मुझे इस तरह के क्वेश्चंस को जब डील करना होता है ना तो रूट को मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, तो आई ऑलवेज प्रेफर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे मेरा ना दिखने में भी काम थोड़ा कम फील होता है और एक अंदर से आता है यार बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे ना। अब ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, उस डिस्टेंस को 13 के इक्वल दिया हुआ है, सो यहाँ पे 13 स्क्वायर हो गया 169। हाँ भाई लर्न करने पड़ेंगे आपको 20 तक के स्क्वायर इफ यू वांट टू एक्सेल योर वर्क। सो p -2 होल स्क्वायर प्लस 7 p -2 होल स्क्वायर plus -5 -7 whole square is equal to 13 square. ठीक है, so I just applied distance formula between the 2 points A and B. तो p -2 whole square बीच में प्लस का साइन, -5 -7 whole square and that is equal to 13 square. So just use the identity to A minus B whole square. So this is A square plus B square minus 2AB. अब यहाँ पे आपका देखिए p square plus 2 to the 4 माइनस वाली आइडेंटिटी है ना तो -2 तो -2 to the 4p प्लस 5 प्लस 7 तो आपका होता है 12 -12 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 144। ठीक, 13 का स्क्वायर 169। सो बी टू स्क्वायर आने तो बहुत जरूरी है, अगर आपको 20 तक के स्क्वायर नहीं आते होंगे और आप ये करने का प्लान कर रहे हैं अच्छी 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 नो, लर्न करो दैट एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। नहीं तो फिर आप इसीलिए बोलते हो मैथ्स पसंद नहीं आ रहा। क्यों पसंद आएगा ना, जब इतनी सारी हैवी कैलकुलेशंस करोगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस ना। अब 169 को मैं शिफ्ट कर रही हूँ नेगेटिव साइन, 4 और 144 को ऐड कर दो, 148 इज इक्वल टू 0। नाउ p स्क्वायर माइनस 4p p स्क्वायर माइनस 4p और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो इट विल बी 1, इट विल बी 2 एंड विद नेगेटिव साइन। यस, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका प्रोडक्ट है -21 एंड आपका सम है -4। तो -21 के फैक्टर -7 इंटू 3 और इन्हीं का सम आपका -4 बना देगा। सो p स्क्वायर -7p प्लस 3p -21 इज इक्वल टू 0। सो आप फर्स्ट टू में से टर्म में से p कॉमन लेंगे, अंदर आएगा मेरा p -7, यहाँ पे से आप +3 कॉमन लेंगे, 7 3 7 21। तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर आ गए हैं p +3 एंड p -7 इज इक्वल टू 0। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ p which will actually justify the given situation. So -3, 7. So the values of p which justify the solution are -3 and 7. And if you have time in your paper, then you can check pa और pb का value, वो सेम आएगा। आप चाहे p का वैल्यू -3 लेंगे चाहे आप p का वैल्यू 7 लेंगे। Now to check your understanding, here is another question number 4. If the distance between 2 points A 3,1 and B 8,m is 5√2 units, then find the value of m. ठीक, so answer will be in the description box. चलिए जी नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन just similar to this question, but the difference is it says if the point P01 is equidistant from point A and B, then find the values of x and also find the distance PA PB. तो previous question में इसने सिर्फ x की वैल्यू निकलवा के हमें छोड़ दिया था, बट अभी ये बोल रहे हैं वैल्यू भी निकालो और फिर उसके बाद डिस्टेंसेस भी निकालो। ठीक है, अब देखो हम जैसे हर बार हर क्वेश्चन में कर रहे थे, हमें गिवन क्या है PA is equal to PB and it also means PA square is equal to PB square.
ठीक, अब यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है P, इसका जो डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है A 5 कॉमा -3 एंड B x कॉमा 6। अब जब आप इसको यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। हाय, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। चलो जी, जल्दी करो, आप लोगों को तो करना पड़ेगा बेटा जी, आपके पास चॉइस नहीं है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विद इन द रूट। देखो मैंने ना करते हुए भी मैंने कर दिया फिर भी, ठीक है, ये होता है मैथ्स लव एक्चुअली। सो x2 माइनस x1, तो p के कोऑर्डिनेट 0 1, ओके। So it is given that these are equidistant. So 0 minus 5 whole square, 0 minus 5 whole square plus 1 minus of minus 3 whole square is equal to 0 minus x whole square plus 1 minus 6 whole square. जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे कि इस केस में था, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल यू कैन राइट ट्वाइस माइनस ऑफ माइनस, ठीक। तो -5 का स्क्वायर तो +5 होता है, +5 का स्क्वायर होता है विच इज +25। सो 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इधर से 0 माइनस एक्स ही होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 माइनस 6 5 होता है विद नेगेटिव साइन, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन ऐड वन मोर स्टेप लाइक 1 minus 6 minus 5, but I think we are in class 10, so it's okay. So x square is equal to 16 and after taking the square root, now the key step, ये वाला जो स्टेप होता है, बच्चे क्या करते हैं, x square 16 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, बट आपको क्या ध्यान रखना है, x की वैल्यू +4 -4 दोनों वैल्यूड है, बिकॉज +4 का स्क्वायर 16 and -4 का स्क्वायर is again 16. So whether it is plus or it is minus, we will have to take both the sign while taking the square root. I hope I am clear, है ना। अब ये वाला जो था, इसने बोला x की वैल्यूज फाइंड करो, तो एक आंसर तो आपके पास हो गया ये वाला। तो अगर आपका ये आंसर है तो इट वुड बी बेटर वी राइट इट इन दी ब्लॉक, इससे आपकी क्लैरिटी आ जाती है। अब इसने बोला फाइंड डिस्टेंस पी ए पी बी। अब ये हमारा ना एक तरह से क्वेश्चन 2 बन गया है, जिसके अंदर आपके पी के कोऑर्डिनेट जो है वो है 0 1 और ए के कोऑर्डिनेट जो है दीज आर 5 एंड -3, और जो आपके बी के कोऑर्डिनेट है plus -4 and 6. So basically we will take 4 at one time and -4 in the other time. So let's find PA. So PA is equal to under the root. देखो अब मुझे अंडर द रूट चाहिए था तो मैंने अंडर द रूट लिखा ना, 5 minus 0 whole square, 5 minus 0 whole square plus -3 -1 whole square. So 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाता है +16। सो मेरा आंसर आ जाएगा 41 विद इन द रूट यूनिट्स, 41 विद इन द रूट यूनिट्स। अब जब मैं x की वैल्यू +4 ले रही हूँ तो मेरा पी बी का वैल्यू आएगा अंडर द रूट, +4 ले रही हूँ, ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो x की वैल्यू +4, क्योंकि मैं नेक्स्ट लूंगी x की वैल्यू -4 के लिए भी इसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे बोला गया है करने के लिए, ठीक है। सो x की वैल्यू +4 को लेते हुए जब आप काम करेंगे तो 0 -4 होल स्क्वायर प्लस 1 -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -1 5 1 -6 -5 -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू रूट 41 यूनिट्स। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ 1 और 6 और 0 और -4, ठीक। तो पीबी के लिए मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस 1 -6 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी 0 + 4 मतलब 4 4 16, ये -5 -5 का स्क्वायर 25 विद इन द रूट, सो इट इज रूट 41 यूनिट्स, रूट 41 यूनिट्स। हाँ जी, तो बताइए अब आपको समझ में आया हम लोग कर क्या रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दीज एक्चुअली हेल्प अस टू फाइंड द डिस्टेंस, एंड इफ वी आर गिवन दैट टू डिस्टेंसेस आर इक्वल देन वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू एज वेल। सो thank you so much bacha party. So here is again question 5 to check your understanding, and for the answer what you have to do, firstly you will solve it and then check the answer in the description box. Thank you, Bacha. See you again. Bye.